आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉस्टुलेट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्या पॉस्टुलेट्स हैं, और इस पे हालांकि पॉस्टुलेट्स से नहीं, आज मोस्टली हम लोग विल बी डिस्कसिंग एप्लीकेशन बेस्ड की कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को यूज करेंगे इनटू सॉल्विंग दोज प्रॉब्लम्स व्हिच आर आस्क्ड इन डिफरेंट एग्जाम्स, राइट। सो लेट्स सी कि कैसे होगा ये। सबसे पहले पॉस्टुलेट क्या है, हालांकि जो भी पॉस्टुलेट है लास्ट क्लास में जब मैं डिस्कस कर रहा था मोस्टली इनको मैंने आपके सामने रखा था, बट लेट्स सी एक बार फिर से हम लोग इसको चेक कर लेते हैं क्या क्या पॉस्टुलेट्स है। द फर्स्ट पॉस्टुलेट इज एटॉमिक ऑर्बिटल्स कम्स नियर एंड देन ओवरलैप ईच अदर टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दैट्स व्हाट वी डिड इन द लास्ट क्लास, राइट। वी स्टडीड दैट atomic orbitals combine together to form molecular orbitals, which is totally different from normal overlapping, and it is also totally different from hybridization. All right, so that's what we have discussed in last class. So the first postulate is clear to everyone. Is there any confusion? That atomic individual atoms which are combining to form a molecule, their atomic orbitals will combine together to form molecular orbital. So does anyone have any doubt related to this? No doubts. Okay. Next is combination of atomic orbitals from two molecule. Okay. Combination of atomic orbitals forms two molecular orbitals. That's what also we have discussed in last class, that number of molecular orbitals formed will be equal to number of atomic orbitals taking part in the bond formation or overlapping, right? So always remember that there will be two molecular orbital formed after combination of two pure atomic orbitals, and those two molecular orbitals will be bonding and anti-bonding orbitals. How they'll be bonding and anti-bonding, that's also we have discussed in previous class while we were discussing linear combination of atomic orbitals, right? So this is also clear that two atomic orbitals will combine together to form two molecular orbitals, namely bonding orbital and anti-bonding orbital. Bonding orbital is represented like sigma, and if it is a sigma bond, and normally pi if it is a pi bond, and if it is an anti-bonding, so we'll use sigma star and pi star, right? Next, both orbitals can be filled by electrons according to above principle. Now we know what above principle is. What is above principle? Can anyone tell me? क्या है above principle? बताइए. What is above principle? So shells with lower energy level will be filled first. Yes. So above principle is basically filling of electron in that we have discussed in atomic structure, right? That if we are trying to write electronic configuration of any particular atom given to us, so electrons will be filled according to energy order of those orbitals, and basically the orbitals with lower energy will be filled first, then orbitals with higher energy will be filled. So same goes for the molecular orbitals. Electrons are filled in molecular orbitals according to energy order of the orbitals or according to above principle. We have discussed in previous class that energy of bonding orbitals will be lower than energy of anti-bonding orbitals. Then only electrons will be filled in bonding orbitals first, and they'll try to form a bond. Because once the electron goes into anti-bonding orbital, there will be no bond, right? So that's also we have discussed. All right. Um, order of energy, that is what we are going to discuss in the next slide. So order of energy of orbitals, what is the order? See, if we are discussing that electrons should be filled according to above principle, we must know that what should be the order which we follow in order to fill electrons. So this is the order of energy of different orbitals which are participating in bond formation. So let me clarify it. The first one, as you can see, is sigma 1s, then sigma star 1s. So this is bonding orbital of when 1s orbital from one atom and 1s orbital from other atom combine together to form bonding orbital. So there will be two bonding orbitals from with 1s. One will be there will be two molecular orbitals with 1s. One will be bonding and other one will be anti-bonding orbital. तो 1s का देखो यहाँ पे दो ऑर्बिटल फॉर्म हो चुके हैं, एक बॉन्डिंग है एक एंटी बॉन्डिंग है. तो बॉन्डिंग वाले की एनर्जी एंटी बॉन्डिंग वाले से कम होगी. फिर हम मूव करेंगे नेक्स्ट ऑर्डर पे. नेक्स्ट क्या होगा? 2s. जैसे कि 2s उसमें भी होता है एटॉमिक ऑर्बिटल में भी, तो 2s के भी दो बनेंगे, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग. देन विल मूव टू 2 पाई. नाउ p के दो सिनारियोज हैं. p सिग्मा बॉन्ड भी बना सकता है और p पाई बॉन्ड भी बना सकता है. दैट वी ऑलरेडी नो. तो जब p सिग्मा बॉन्ड बनाएगा
तो कुछ अलग एनर्जी होगी, जब p पाई बॉन्ड बनाएगा तो कुछ अलग एनर्जी होगी। अब यहां पे हम लोग देख रहे हैं क्लियरली कि लिखा हुआ है कि फ्रॉम H2 टू N2, जो लोअर एनर्जी वाले एलिमेंट्स होते हैं, या जो छोटे जो एलिमेंट्स प्रीवियस पहले वाले एलिमेंट्स हैं उनकी बात कर रहे हैं हम, तो उन एलिमेंट्स में हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि मतलब लाइट एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं हम। ऐसा नहीं कि N2 के बाद O2 बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा, बट देयर इज अ बाउंड्री लाइन कि N2 से पहले और N2 तक जो ऑर्डर होगा एनर्जी का वो ऐसा फॉलो होगा। मतलब पाई का जो एनर्जी होगा, मतलब बॉन्डिंग ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं हम। ये देखो यहां से यहां तक ये तीनों जो है ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं। ये क्या है? बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। यहाँ पे देखो ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ये भी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। तो यहां से यहां तक सारे बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की एनर्जी ऑब्वियसली सारे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी से कम होगी, दैट इज फॉर श्योर। लेकिन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में भी अब तीन हो गए, पहले इसमें तो एक ही था, अब इसमें तीन हो गए, तो उन तीनों के एनर्जी ऑर्डर भी पता होना जरूरी है। सो इट इज ऑब्जर्व्ड दैट फॉर लाइटर एलिमेंट्स लाइक H2 to N2 will use this pattern where pi bonding orbitals will have less energy as compared to sigma bonding orbitals. First thing, this part is more important. ये इधर मार्क कर लेना कि पाई वाले की एनर्जी सिग्मा वाले से कम होगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि पाई दोनों अगर पाई बना रहे हैं, मान लो एक ही सिग्मा बन सकता है, आपको पता है, दैट वी ऑलरेडी नो दैट अगर दो ऑर्बिटल लिनियरली ओवरलैप कर रहे हैं पी के, तो बाकी के जो दो सॉरी मतलब इस एटम का एक ऑर्बिटल और दूसरे एटम का एक ऑर्बिटल अगर वो लिनियरली ओवरलैप कर रहे हैं, तो इन दोनों एटम के एक्स वाई या वाई जेड दूसरे जो ऑर्बिटल्स होंगे वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे किसमें? सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में। अगेन मैं रिपीट कर देता हूं कि अगर मान लो px फ्रॉम एटम नंबर 1 overlaps with px from atom number 2 in order to form a sigma bond, then it is definitely sure that py and pz from both the atoms will not be able to form sigma bonds anymore, so they can only form pi bond. So you know why there are two pi orbitals and one sigma orbital. इसका रीजन हमने वीवीटी में भी क्लियर कर लिया था। तो अब ये जो पाई है, ऑब्वियसली सर दोनों सेम ऑर्बिटल है, सिमिलर है, पीएक्स पीवाई की एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं होता, पीवाई पीजेड की एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं होता, तो जो इनके पाई ऑर्बिटल बनेंगे उनकी एनर्जी में भी कोई डिफरेंस नहीं होगा। मतलब पाई टू पी जेड एंड पाई टू पी वाई विल हैव इक्वल एनर्जी। अब मैं यहां पे एक और बात आपको क्लियर कर दूं कि ये मैंने सिग्मा पीएक्स लिया है, आप सिग्मा पीजेड भी ले सकते हैं, देयर इज नो डिफरेंस, राइट? You can use sigma pz and then pi 2px, pi 2py. You can use sigma py and then you can use pi 2py, sorry pi 2pz and pi 2px. तो आपको पता है कि एक कोई भी हमें चूज करना है सिग्मा के लिए, बाकी दोनों पाई बनाएंगे, राइट? सेम वी हैव डन फॉर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स. So you should remember this energy order. Why you should remember this? That will, when we'll go to the application part, you will come to understand that, okay, if we remember this energy order, we'll be able to easily find out how many bonds will be formed, what will be the bond order, what will be the bond energy, what will be the stability of compound, whether it is a paramagnetic or diamagnetic, and different other aspects also will be able to find out using these energy order. तो आपको ये energy order पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है, बहुत important है. अब सर H2N2 के बाद क्या होगा? पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि टोटल जो मॉलिक्यूल के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अपने सिलेबस में, दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 20. मतलब ऐसा नहीं कि इसके अलावा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी डिफाइंड नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है, राइट? जो 20 तक मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, पूरे मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं मैं, नॉट जस्ट इंडिविजुअल एटम, पूरे मॉलिक्यूल में 20 इलेक्ट्रॉन हो जाए, उससे ज्यादा हमारे सिलेबस में नहीं है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो हम उतने पे ही फोकस करेंगे जिसपे 20 इलेक्ट्रॉन्स हो. मैं आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि दुनिया में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सबका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है, एंड दैट विल बी द मोस्ट एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन. इनफैक्ट जो मेटल नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड है उसका भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखा जा सकता है, बट that is not part of the discussion, that is not part of our syllabus, so we'll not focus on that, but we know that it is possible to do that. all right, next, अगर मान लो O2 से F2 मतलब जो हायर एटॉमिक मास के हैं, जो हायर मासेस के मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें क्या एनर्जी ऑर्डर होगा? तो उनमें एनर्जी ऑर्डर का जो सीक्वेंस होगा यहां से यहां तक सब सेम रहेगा, बस यहां पे चेंज आ रहा है, ये ध्यान दें आप लोग. क्या चेंज आ रहा है? चेंज ये आ रहा है कि सिग्मा वाले की एनर्जी इसमें कम हो जाती है पाई वाले से, बाकी कोई चेंज नहीं है, बाकी ऑल सेम एज द प्रीवियस वन.
ठीक है, बाकी सब कुछ पैटर्न सेम है, बस यहाँ पे आप लोग ये ध्यान रख लीजिएगा। आप बोलिएगा सर ये कैसे पता चला कि ये सिग्मा वाले का कम है और पाई वाले का ज्यादा है? तो इसका रीजन एक ही है कि वी कैन एक्सपेरिमेंटली फाइंड इट आउट, और इसकी स्टडी जब हम लोग करते हैं मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स तो हमें पता चलता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। बट लेट्स नॉट मूव इनटू दैट बिकॉज दैट विल मेक इट मोर कंफ्यूजिंग, और ये आपको और ज्यादा समझ से बाहर जाने लगेगा। तो इट विल बी इजी दैट यू मेमोराइज दिस ट्रेंड। एसपी मिक्सिंग होती है, उसकी वजह से ये डिफरेंसेस आते हैं, लेकिन विल नॉट गो इनटू व्हाट इज एसपी मिक्सिंग बिकॉज इट विल मेक अस मोर कंफ्यूज्ड, राइट? तो यहाँ पे फोकस करेंगे, याद रख लोगे एनर्जी का ऑर्डर कि सर अगर नाइट्रोजन या उससे पहले के हैं, मतलब N2 या उससे लोअर मास नंबर के हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वाला ट्रेंड यूज करेंगे। ट्रेंड में क्या डिफरेंस है? पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी कम हो जाती है, मतलब वो पहले फिल होंगे, फिर सिग्मा 2pz होगा फिल, या सिग्मा 2px जो भी हम ले रहे हैं। और O2F2 वाले में ये एनर्जी ऑर्डर होगा, सिर्फ सिग्मा वाला वो भी बॉन्डिंग वाले में, एंटी बॉन्डिंग वाले में सेम है। देखो आप, एंटी बॉन्डिंग वाले में कोई चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ बॉन्डिंग वाले की बात कर रहे हैं, वो पहले आ जाए। याद रख लोगे ये ट्रेंड? ठीक है, आई होप कि आप लोग याद रख लोगे। अब हम लोग बात करते हैं कि इसको कैसे यूज करेंगे इस ट्रेंड को। तो सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर। Now, most of you and everyone, I think I have taught everyone that bond order is number of bonds between two atoms combining to form molecule, right? तो आपको पता है कि बॉन्ड ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स। क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर? नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। अब ये बॉन्ड्स कैसे निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग? तो लेट्स सी, जो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है दैट इज बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल्स टू, ध्यान से देखेंगे आप लोग, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, मतलब उस सारे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में दे विल बी कॉल्ड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। ये होता है बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला। बॉन्ड ऑर्डर से क्या पता चलेगा? बॉन्ड ऑर्डर से हमें यह पता चलेगा कि दो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड हैं। अब मैं आपको समझाता हूं बहुत सिंपल सा एग्जांपल, जो बहुत दिनों से बहुत लोग डाउट पूछ रहे हैं कि सर आप मुझे ये बताइए कि ये ऑक्सीजन 2 पे एक माइनस था, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, राइट? बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा था ये, राइट? कि सर ये O2 2 माइनस है अगर, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, कैसे निकालेंगे? सो लेट्स फाइंड आउट कैसे निकालेंगे। तो सर लेट्स फर्स्ट राइट डाउन इट्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए, कौन बताएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन O2 का? सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2। क्यों सर? देखो पहले आपको क्या करना है, जो भी मॉलिक्यूल दिया हुआ है, मोस्टली क्या, सारे मॉलिक्यूल आपको डायटोमिक ही मिलेंगे, इसके अलावा कोई मॉलिक्यूल आपको एप्लीकेशन में नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने अभी बताया कि 20 से ज्यादा होने नहीं चाहिए, तो इसलिए आपको वैसे मॉलिक्यूल नहीं मिलेंगे, तो आप उसकी टेंशन ना लें। तो जो भी मॉलिक्यूल, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो। इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे सर? ऑक्सीजन में बाय डिफॉल्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो देयर आर 2 ऑक्सीजन एटम्स, सो देयर विल बी 16 इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर इज अ नेगेटिव चार्ज, सो इट विल मेक इट 17। किसी को डाउट है तो बताओ? डज एनीवन हैव एनी डाउट्स कि इसमें 17 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे? होंगे, राइट? अब इन 17 इलेक्ट्रॉन्स को हमें अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू एनर्जी ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो सिग्मा 1s2 की एनर्जी, सिग्मा 1s की एनर्जी सबसे कम होती है, सिग्मा स्टार 1s की उसके बाद, फिर सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। कितने इलेक्ट्रॉन्स कवर कर लिए हमने? 8। कितने बचे अभी? 9। तो अब हम क्या करेंगे सर? यहां से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है सर, इसके बाद थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, एक बार पीछे वाली स्लाइड पे ले जाओ सर। पीछे वाली स्लाइड पे क्यों? क्योंकि सर हम लोग भूल गए, हमें अभी जैसा आपने दिखाया था जो ट्रेंड, वो हमने नोट नहीं किया था, तो अब दिखा दो, ये लो। तो ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन जैसे मॉलिक्यूल्स होंगे अगर, तो क्या करेंगे हम लोग, ये वाला एनर्जी ऑर्डर, मतलब सिग्मा 2px या सिग्मा 2pz, मतलब सिग्मा वाला जो p का सिग्मा होगा उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो p के सिग्मा यहां पे मैं लिख देता हूं सिग्मा 2px, और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, हो गए 10। अभी भी कितने बचे हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स।
तो लेट्स राइट फॉर द अदर वन विच इज पाई 2p y इक्वल्स टू पाई 2p z। अब सर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं अभी तक 7, जगह है यहाँ पे 4, तो दो दो इसमें आराम से डाल सकते हैं। देखो एक बात आप लोग ध्यान देंगे कि हमेशा जो इक्वल एनर्जी वाले हैं उसमें इलेक्ट्रॉन 1 बाय 1 फिल होगा, बट अपने पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है तो हम उस विल नॉट बॉदर अबाउट द फैक्ट कि 1 बाय 1 करें या दोनों को एक साथ कर दें। मतलब लिखने के टर्म्स में बोल रहा हूं मैं, फिल होने के टर्म्स में 1 बाय 1 ही होगा। मतलब ये कि अगर पाई 2px और पाई 2py और पाई 2pz की एनर्जी बराबर है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग होगी वो वैसी ही होगी जैसा हमने किसमें पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल। हुन्स रूल ने क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स इक्वल एनर्जी वाले में डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में पहले 1 बाय 1 फिल होगा, फिर पेयरिंग होगी। मतलब अगर अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने भी हैं इसमें, तो पहले इसमें, फिर दूसरा इसमें, फिर इसमें, फिर चौथा इसमें। तो अपने पास 7 इलेक्ट्रॉन है, वी हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हम लोग इसलिए उस चीज को यहाँ पे इतना हाईलाइट नहीं कर रहे थे। बट यू विल ऑलवेज रिमेंबर दैट ऑल द रूल्स व्हिच आर फॉलोड इन एटॉमिक स्ट्रक्चर फॉर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम विल बी फॉलोड इन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आल्सो, मतलब मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन आल्सो। तो ये हो गया। अब इसके बाद सर हमें जहां तक ध्यान है कि पाई स्टार वाला पहले आता है एनर्जी में, मतलब पाई स्टार वाले की एनर्जी कम होती है, तो पाई स्टार 2p y इज इक्वल टू पाई स्टार 2p z। कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं अपने पास और बताइए? टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ पे, हमने कितने फिल कर लिए अभी तक? 14, तो 3 बचे हैं। अब 3 बचे हैं तो क्या हमें सिग्मा वाले की जरूरत है क्या सिग्मा स्टार वाले की? नहीं सर, 4 2 ऑर्बिटल है, 4 इलेक्ट्रॉन तो यही ऑक्यूपाई कर सकते हैं, तो हमें उसकी जरूरत नहीं है क्या? तो इसमें 2 और इसमें 1 लिख दूं तो यहीं पे अपना कंप्लीट हो गया। अगर 2 इलेक्ट्रॉन और होते तो हमें सिग्मा वाले की जरूरत पड़ती, हालांकि वो भी है एनर्जी ऑर्डर में नेक्स्ट वही है, लेकिन हमें उसको नहीं लिखने। जस्ट लाइक कि मान लो हमारे पास 3s में इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं रहा है तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ी लिखते हैं 3s2, राइट? तो वैसा ही है ये, जहां तक इलेक्ट्रॉन जाएंगे वहीं तक लिखेंगे। मुझे ये बताइए कि किसी को इसमें कोई डाउट है? कोई बच्चा जिसको इसमें कोई डाउट कंफ्यूजन हो तो बता दो पहले। नहीं है? नहीं है डाउट तो देख लो, फिर आंसर करो, बताओ मुझे इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 1.5। कैसे? कि सर बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स को आप एक बार हाईलाइट करो। तो ये देखो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 2 2 4, यहाँ पे 6, देन 4, कितने हो गए? 10। तो बॉन्डिंग और इलेक्ट्रॉन्स जो हो गए वो कितने हो गए? 10। अब बात करते हैं हम एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की। तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली सर टोटल 17 है, उसमें से बॉन्डिंग 10 हो गए तो एंटी बॉन्डिंग 7 हो गए, काउंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मुझे डाउट होगा सर तो मैं काउंट करके देख लूंगा। तो 2 + 2 4 + 2 6 + 1 7, तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग हो गया 7। अब बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा बताओ सर? 10 - 7/2 विच इज 3/2 विच इज 1.5। आया समझ? तो इस तरह से बॉन्ड ऑर्डर हम लोग निकालेंगे। अब बॉन्ड ऑर्डर का यूज क्या है सर? बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पे हम लोग बॉन्ड लेंथ बता सकते हैं। कैसे? बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा होगा सर उसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी या फिर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो ये सारी चीजें आपस में रिलेटेबल है। बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पे हम लोग बहुत सारी चीजें बता सकते हैं, वो भी मैं आपके दिखाऊंगा आगे। लेकिन बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका और बॉन्ड ऑर्डर समझ में आया तो बताइए, तो मैं आगे बढ़ूं। कौन है जिसको नहीं समझ में आया वो भी बता दो यार। जिसको फिर नहीं आगे आ गया समझ में, ठीक है, चलिए अच्छी बात है, आ गया समझ में। तो अब देखो आपको क्या करना है। आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। आपको क्वेश्चन दूंगा, आप यूं चुटकियों में करोगे आंसर। सिर्फ ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन की एनर्जी बस याद रख लो, एनर्जी ऑर्डर याद रख लो। आधे से अधिक क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा दूंगा ऐसे ही। जैसे कि देखो मेरे पास यहाँ पे प्रीवियस ईयर की बुक है। अब देखो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं और आप आंसर करोगे। पूछा जा रहा है, अभी 2019 का क्वेश्चन नहीं है, मतलब लास्ट ईयर का। चलो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर के बारे में थोड़ा बहुत लिख दिया गया है कि अगर
बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो इसका मतलब है कि वो जो भी मॉलिक्यूल होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। वो भी देखेंगे हम लोग, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे उसमें। अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 2 3 ऐसे है तो डबल ट्रिपल ऐसे बॉन्ड बोलेंगे उनको, डबल सिंगल डबल ट्रिपल, आपको पता है ऑलरेडी, ये मैंने लिख दिया। बट आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए, चलो क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है, मान लो मैं ऐसे पहले इसको मैं लाता हूं, बट पहले मैं नॉर्मल एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे कि आप बताइए कि आपको क्या लगता है H2 और He2 में क्या बॉन्ड ऑर्डर होगा, किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा और किसका कम होगा? बताइए, H2 और He2 में क्या बॉन्ड ऑर्डर होगा और किसका ज्यादा होगा? दो मिनट का टाइम है, जल्दी से करो यार, इतने तो इलेक्ट्रॉन नहीं है इसमें जितना तुम सोच रहे हो। सही है जब H2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या आया बताइए, मान्यता बताओ। 1s2 sigma 1s2 नहीं, बॉन्ड ऑर्डर पूछ रहा हूं मैं, सिग्मा 1s2, तो इसके पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2, एंटी बॉन्डिंग 0 डिवाइडेड बाय 2, बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया? 1। बोलो। yes sir He2 की बात करते हैं, तो He2 का हो जाएगा सर सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s2। क्यों? क्योंकि सर इसमें टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा सर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि हीलियम आपस में क्यों He2 नहीं बनाता, हीलियम He के फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है, ये नाउ यू नो दैट, यू नो व्हाई हीलियम इज जस्ट हीलियम नॉट हीलियम 2, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर हो गया उसका 0। तो जिसका भी बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है ये बात? आप आर्गन 2 का भी करके देख सकते हो, Ar2 आर्गन का भी करके देख सकते हो, या सॉरी नियन का, मतलब तो इससे आपको पता चलता है कि सर बॉन्ड ऑर्डर जो है वो हमें बता देगा कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करना है या नहीं करना है उसको। और अगर करना है, आपसे कोई पूछे कि बताइए He2 और H2 में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो अगर आप क्या बोलोगे? बोलोगे सर H2। क्यों? क्योंकि He तो होता ही नहीं है। हाँ, हीलियम और हाइड्रोजन में कौन पूछ रहा है तो वो हम अलग तरीके से डिस्कस करेंगे, लेकिन He2 एंड H2 में H2 विल बी मोर स्टेबल। ऑलराइट, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? C2 2 माइनस एंड N2 2 माइनस, किसका क्या बॉन्ड ऑर्डर होगा और किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा? ये जल्दी से आप लोग, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, करके बताओ मुझे फटाक से, इन दोनों में किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा? जल्दी से बताओ मुझे, कुछ नहीं करना है, नंबर। देखते हैं कि N2 2 माइनस और C2 2 माइनस में बॉन्ड ऑर्डर का कैसे निकालेंगे हम लोग, ये हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे। N2 2 माइनस में देख लेते हैं पहले, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं सर? नाइट्रोजन में 7 होते, 2 नाइट्रोजन हो गए 14 और 2 नेगेटिव चार्ज, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए 16। C2 2 माइनस की बात कर लेते हैं, कार्बन में टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं सर 6, 2 कार्बन हो गए 12 प्लस 2 माइनस हो गया तो हो गया 14। अब 14 इलेक्ट्रॉन है इसमें और इसमें 16 इलेक्ट्रॉन है, ऑर्डर कौन सा फॉलो होगा? ऑर्डर में मैं बताता हूं कि अगर आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसको भूल जाओ, उनको मिला के बॉन्ड ऑर्डर 0 आना है। क्यों? क्योंकि सर सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, 8 इलेक्ट्रॉन तो यही कवर कर लेते हैं, तो और इनका नेट मिला के 0 हो जाना है, क्योंकि ये दो, इनमें 4 बॉन्डिंग और 4 एंटी बॉन्डिंग, तो इनका बॉन्ड ऑर्डर में कोई रोल होगा क्या? नहीं होगा। तो उसको जनरली ऐसे भी लिखा जाता है KKLL, मतलब के रिप्रेजेंट्स कर्नल सेल और उसके बाद LMN, आपको पता है। तो फर्स्ट सेल का है तो फर्स्ट सेल के दोनों आपस में कंबाइन कर लेंगे, एक बॉन्डिंग हो जाएगा, एक एंटी बॉन्डिंग, 0 बॉन्ड ऑर्डर इसकी वजह से, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग 0, KKLL इसमें भी आ जाएगा। तो 8-8 इलेक्ट्रॉन तो हमने कवर कर लिया, यहां से यहां तक 8 इलेक्ट्रॉन और यहां से यहां तक 8 इलेक्ट्रॉन कवर हो गए। किसी को इस पार्ट में डाउट है KKL वाले में तो पूछ लो। सर एक बार फिर समझा दो। देखो KKLL क्या है? सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s, ठीक है, इसमें दो दो इलेक्ट्रॉन तुम डाल दो, राइट? अब तुम इसमें दो दो इलेक्ट्रॉन को इसको के से रिप्रेजेंट करते हो, मतलब एक सिग्मा है और एक सिग्मा स्टार है, इन दोनों का नेट जब आप देखोगे तो 0 आएगा कि नहीं बॉन्ड ऑर्डर, इन दोनों को मिला के? यस सर और इसको मिला के भी बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा, क्योंकि सिग्मा 2s2 है और सिग्मा स्टार 2s2 है। अब ये अगर 8 इलेक्ट्रॉन है, किसी स्पीसीज में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो रहेगा ही रहेगा ना उसमें, कोई मॉलिक्यूल है जिसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ये वाला ट्रेंड तो रहना ही है उसमें, दोनों नीचे वाले, पहले वाले मतलब।
Yes, ये sir. 8 इलेक्ट्रॉन तो यहीं तक फिल होंगे ना, 8 इलेक्ट्रॉन तक तो ये रहेगा ही रहेगा सीन, ये तो रहना ही है, दोनों में है ये तो। इससे पहले वाला पार्ट देख लो आप, दोनों में है, यहाँ भी है, तो Yes, ये sir. तो रहना ही रहना। तो इसको हम लोग शॉर्ट में के एल एल लिख देते हैं। के रिप्रेजेंट, के मतलब सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s और दो दो इलेक्ट्रॉन, और एल एल मतलब सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, दो दो इलेक्ट्रॉन। 8 क्योंकि इसका रोल 0 आना है तो इसको हम लोग कंसिडर नहीं करते, छोड़ो। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग, इसके बाद क्या आएगा, तो इसके बाद सर आता है पाई। तो पाई 2p y इज इक्वल टू पाई 2p z, फिर आएगा सर सिग्मा 2p x, फिर आएगा पाई स्टार 2p y इक्वल टू पाई स्टार 2p z। आई थिंक इतने में इलेक्ट्रॉन्स अपने सारे कवर हो जाएंगे। लेट्स फाइंड आउट। टोटल इलेक्ट्रॉन 8 हमने कवर कर लिए, बचे कितने हैं 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो पहले दो दो इनमें डाल दो, 4 कवर हो गए। कितने बचे 4, तो 2 इसमें डाल दो, 6 कवर हो गए। कितने बचे 2। अब 2 1 1 करके डालेंगे या नहीं डालेंगे बताओ, क्योंकि उन दोनों की एनर्जी बराबर है। बोलिए सही लिखा है क्या मैंने? यस सर। अब अगर आपको लगता है कि मैंने ये सही लिखा है तो नेक्स्ट पार्ट में मूव कर जाते हैं। इसमें सर हम लोग कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 8 आपने कवर कर लिया, 6 इलेक्ट्रॉन बचे। 6 इलेक्ट्रॉन मतलब सर कहानी यहीं तक खत्म हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं बोलो? तो पाई 2p क्या y इज इक्वल टू पाई 2p z इज इक्वल टू सिग्मा 2p x 2। बोलिए सही लिखा है क्या मैंने? किसी को कोई डाउट है तो बताओ। मैंने क्या किया, एनर्जी ऑर्डर पहले लिख लिया, और इलेक्ट्रॉन जितने बचे हैं उस 8 इलेक्ट्रॉन तो हमने के एल एल में ही कवर कर लिया। तो बचे 6 इलेक्ट्रॉन इसमें और 8 इलेक्ट्रॉन उसमें। तो 8 इलेक्ट्रॉन को मैंने एनर्जी ऑर्डर के अकॉर्डिंग प्लेस कर दिया, और 6 इलेक्ट्रॉन को मैंने एनर्जी ऑर्डर के अकॉर्डिंग प्लेस कर दिया। अब अगर आप देखोगे तो जितने लोगों का बॉन्ड ऑर्डर, मुस्कान तुम्हारा आंसर क्या आया था बोलो? सर मेरा 3 और 2 आया। 3 और 2। जब तुम्हारा आंसर क्या आया था? तो 3 और 2 ही आ रहा था। 3 और 2 आ रहा था। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सब लोग ध्यान दें। यहाँ पे टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे? 6 यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2। बोलोगे सर इसको क्यों नहीं काउंट कर रहे हो? इसको मैं काउंट कर रहा हूं, बट वो नेट जीरो कर देंगे। 4 बॉन्डिंग है, 4 एंटी बॉन्डिंग है, तो नेट तो जीरो हो जाना ना उनका। तो इसलिए उसको मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं, इसलिए इसको मैं भूल गया हूं। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं ज्यादा, बट हम लोग कैलकुलेट करने के लिए इतने को ही मान के चल रहे हैं। इट्स जस्ट लाइक कि 4 - 2 इज 2 और 2 - 0 इज ऑल्सो 2। तो वही मैं कर रहा हूं कि अगर मिलाकर 0 या 2 ही आना है तो कैसे भी कर लो। तो बॉन्ड ऑर्डर यहां पे हो जाएगा 6 - 2 डिवाइडेड बाई 2 विच विल बी इक्वल टू 2। और यहां पे बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा कार्बन वाले में 6 - 0 डिवाइडेड बाई 2 विच विल बी इक्वल टू 3। तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ C2 - विल बी ग्रेटर देन बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 2-। बोलो क्लियर है? सबको? सर जो आपने 6 माइनस माइनस के बाद 2 और 6 माइनस 0 किया सर, ये वाला समझा दो, ये वाला नहीं आया सर। क्योंकि 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 0 है, इसमें क्या दिक्कत है भाई? अब मैं आप लोग को एक बहुत अच्छी बात बताता हूं। अच्छी बात यह है कि जो लोग आज क्लास आ गए उनको बहुत फायदा होने वाला है। वो कैसे? वो इसलिए क्योंकि कभी भी बॉन्डिंग से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे कॉमन जो सबसे फेवरेट टॉपिक है वो है एमओटी। सबसे फेवरेट टॉपिक है एमओटी, बॉन्डिंग से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाने में। हाइब्रिडाइजेशन एंड एमओटी, हाइब्रिडाइजेशन एंड एमओटी मोस्ट कॉमन टॉपिक्स हैं। और भी ऐसे नहीं कि सब बाकियों से नहीं आता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा फेवरेट टॉपिक्स हैं, इनसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, हर बार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और इसीलिए आपने देखा होगा अगर आप क्वेश्चन में बैंक में जाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जहां पे कि आपको ऑर्डर वगैरह और इसके क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। कहीं भी किसी भी में जाओगे ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो या कहीं भी देख लो, एमओटी के क्वेश्चन बहुत मिलेंगे। अब जो लोग नहीं आएंगे वो ढूंढते रह जाएंगे क्या कर रहे हैं सर, कैसे कर रहे हैं। जो लोग आ गए वो ध्यान से समझ लो, अगर नहीं समझ में आता है तो पूछ लो प्लीज, ठीक है, क्योंकि आज बहुत सारी चीजें करने वाले हम लोग। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका आपको पता चल गया है सबको कि सर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। जिसको ये KKLL वाली बात नहीं समझ में आई, आपके लिए बेसिक तरीके से आप चलो, टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो बॉन्डिंग के, टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो एंटी बॉन्डिंग के। KKLL ना लिख के आप सिग्मा 1s सिग्मा 2s ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई चेंज नहीं आएगा। आप टाइम के साथ में भी खुद ही समझ जाओगे कि KK और LL क्या है। ठीक है,
तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको नहीं समझ में आ रही है वाला पार्ट तो आप इसको रहने दो, आप बस बेसिक से चलो, पूरा स्टार्टिंग से चलो। क्लियर है? और धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपके दिमाग में पिक्चर बनने लगेगी सीधे, जैसे कि जब आप बता रहे हैं कि सर मुझे एक ट्रिक पता है कि इलेक्ट्रॉन्स टोटल पता होने चाहिए तो मैं कर लूंगा, वो ट्रिक नहीं है। जब आप वो बस अंडरस्टैंडिंग है कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इतना छोटा है, इतना कम है और इतने कम नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं कि हम पूरे इसको रट चुके हैं कहाँ क्या होगा। ठीक है? तो इसलिए अपने को ऐसा लगता है, जैसे मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 ही होगा, अगर 3 है तो घटता जाएगा, फिर 4 है तो 0 हो जाएगा, फिर 5 है तो 0.5 होगा, ऐसे कर करके बढ़ता जाएगा। तो इसमें टेंशन नहीं लेना है, आप सीख जाओगे अभी। खैर नेक्स्ट एप्लीकेशन में मूव करते हैं, जिसका है कि बॉन्ड ऑर्डर की स्टेबिलिटी, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन बॉन्ड ऑर्डर। ये भी बहुत जरूरी है समझना, ध्यान से देखेंगे सब लोग, ध्यान से सब लोग देखेंगे क्या है स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन बॉन्ड ऑर्डर। कैसे देखेंगे भाई, कौन बताएगा? बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी या कम होगी? सर ज़्यादा होगी। ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहां पे देखें कुछ कुछ चीजें मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझेंगे सब लोग। सबसे पहले तो यहां पे दिया गया कि बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, डिक्रीजेस बॉन्ड लेंथ। ठीक है, अगर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा, ये कॉमा दे के लिखना यार, अगर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, मतलब स्टेबिलिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, मॉलिक्यूल की। और बॉन्ड लेंथ अभी देख लिया, बॉन्ड लेंथ विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। ये तो हमें कब से पता है सर, कि 2 बॉन्ड होते हैं तो बॉन्ड लेंथ कम होती है, 3 बॉन्ड होते हैं तो बॉन्ड लेंथ और कम हो जाती है, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है। ये हमने वीबीटी के टाइम में, हैबिटेशन के टाइम, या आई थिंक उससे भी पहले ही हमने ये सब डिस्कस कर लिया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉन्ड ऑर्डर सर बहुत सारी चीजों को बता देगा, हमें स्टेबिलिटी के बारे में बता देगा, ठीक है, और बॉन्ड लेंथ के बारे में बता देगा। अब एक नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि अगर सर मान लो कि, अगर मान लो सर कि बॉन्ड ऑर्डर सेम हो गया, तो हम कैसे पता करेंगे कि किसका स्टेबिलिटी ज्यादा है किसका स्टेबिलिटी कम है? ठीक है, जैसे कि यहां पे लिखा है, मैंने इसलिए पॉइंट लिखा है कि इन केस of same bond order, the one with less electrons in anti-bonding electrons orbitals will be more stable। ठीक है, कि अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। क्या कि नोट तो वैसे सबको ही करो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्या है कि जब बॉन्ड ऑर्डर हो जाए बराबर, जब बॉन्ड ऑर्डर बराबर हो जाए दोनों का, तो फिर उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगी जिसके एंटी बॉन्डिंग में कम से कम इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग का काम है मॉलिक्यूल को डिस्टेबलाइज करना, एनर्जी को बढ़ाना, क्योंकि एंटी वाले की एनर्जी ज्यादा है। तो जिसके एंटी बॉन्डिंग में कम इलेक्ट्रॉन होंगे, बॉन्ड ऑर्डर सेम होने के बाद उसकी एनर्जी हो जाए, सॉरी उसकी स्टेबिलिटी हो जाएगी कम। ध्यान रहेगा? ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर और स्टेबिलिटी के बेसिस पे चलो, अब मैं जो क्वेश्चन करा रहा था वो मैं कराता हूं, जो कि प्रीवियस ईयर से आए हुए क्वेश्चन से। बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं आज, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे और सब लोग करेंगे। ठीक है, जिसको नहीं करना आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एंड आयंस द वन डायमैग्नेटिक एंड हैज, ओके डायमैग्नेटिक छोड़ो, शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ आपको बताना है इसमें, सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ किसका होगा? C2 2 माइनस, ठीक है, N2 2 माइनस, O2 2 माइनस, इन तीनों में सबसे छोटा किसका है ये आपको बताना है। जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए मुझे।
हाँ जी, किसका किसका आ गया आंसर, देखते हैं। अनिशा कह रहा है Cu2 माइनस सबसे ज्यादा होगा। मोस्टली सबका आंसर यही आ रहा है कि सर Cu2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर जो होगा, सॉरी आपको क्या बताना था, शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ। हाँ, तो शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ हो जाएगा C2 माइनस। C2 माइनस की बॉन्ड लेंथ हो जाएगी सबसे छोटी। क्यों? क्योंकि सर बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा। देखो इन दोनों का तो अभी हमने निकाला है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना था 3 और इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना था 2। अब O2 2 माइनस में क्या होगा सर, O2 2 माइनस में ये होगा कि ये जो हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, इसमें यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। O2 2 माइनस में 16 की जगह 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, +1 यहाँ पे और +1 यहाँ पे। बोलो हाँ या ना। इलेक्ट्रॉन्स का ही तो लेना देना यार, हमें थोड़ी मतलब है कि O2 है कि N2 है कि F2 है। दो दो इलेक्ट्रॉन इधर इधर आ गए, ऐसा ही होगा क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये हालांकि देखो बॉन्ड ऑर्डर निकल जाएगा सही, लेकिन आप ध्यान रखना कि O2 वाले केस में ये आ जाता है पहले। क्या बात समझ में आ रही है आपको? तो O2 का मैं कॉन्फ़िगरेशन अलग से लिख देता हूं यहाँ पे। O2 का होगा KKLL, ठीक है। उसके बाद क्या होता है O2 में, सिग्मा वाला पहले आ जाता है, तो सिग्मा 2px2, देन पाई 2py2 will be equals to pi 2pz2, then pi star 2py2 and pi star 2pz2, ठीक है। तो पाई स्टार का वही रहता है, लेकिन मतलब स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग वाले का ट्रेंड वही रहता है, लेकिन O2 में आपको पता है कि सिग्मा वाला जो है पी का वो पहले आ जाता है, मतलब उसकी एनर्जी कम हो जाती है। तो ये जब देखेंगे हम लोग तो यहां तक का तो 0 ही होता है, इनका मिला के बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है 0। अब इनकी बात कर ले तो टोटल एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है 6, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है 4, तो 6 - 4 डिवाइडेड बाई 2, बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका आ गया 1। तो आपको पता है कि बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ का क्या सीन है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम। तो आपसे पूछा जा रहा शॉर्टेस्ट, तो शॉर्टेस्ट कौन सा होगा, ये। और मैंने आपको जैसा कि बताया, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2019 9 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अभी मैं आपको करवाऊंगा, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप देखोगे अभी तो आपको समझ में आएगा। लेकिन एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिज्म। की पैरामैग्नेटिक कौन सा होता है? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, लिख ले पहले आप लोग। मॉलिक्यूल्स or atoms with unpaired electrons will be paramagnetic and those with zero unpaired electrons will be diamagnetic। देखो यहां पे मैंने कहीं लिखा भी होगा मे बी, हाँ ये देखो यहां पे। तो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल क्या है, क्योंकि उसपे बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं। पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक में देखो, जिसके पास एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो उसको हम बोलेंगे पैरामैग्नेटिक, और जिसके पास 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, जिस सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो उसको हम बोलेंगे डायमैग्नेटिक, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक आपको समझ में आया कि जो मॉलिक्यूल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया है, कहीं भी अगर उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, और कहीं भी अगर उसके पास सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो वो डायमैग्नेटिक होगा। ये याद रहेगा अगर, तो मैं अब बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं, आप रेडी हो जाइए और शुरू करते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप सब लोग। क्वेश्चन है कि अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स expected to be stabilized by anion formation। अच्छा, इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जो अनायन फॉर्म करने से स्टेबलाइज होने के चांसेस हैं जिसके, ठीक है। among the following molecules the one which is expected to be stabilized by anion formation, ठीक है। मेन पॉइंट लिख देता हूं मैं, expected to be stabilized by anion formation। इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जो आपको लगता है कि अनायन फॉर्म कर लेगा तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी एज कंपेयर टू जिस स्टेट में है अभी उससे। मॉलिक्यूल्स है C2, O2, NO एंड F2। बताइए कि इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें अनायन फॉर्म करने से स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। सोचिए और बताइए। ऑलराइट, तो बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ जाए तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ये हमने सोच लिया। अब बॉन्ड ऑर्डर कैसे बढ़ेगा? तो सर बॉन्ड ऑर्डर तभी बढ़ेगा जब इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाएगा। अगर गलती से वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में चला गया तो बॉन्ड ऑर्डर घट जाएगा।
तो इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाना पड़ेगा। इसका मतलब हमें यही देखना है कि इन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, और फिर हम देखते हैं कि किसका इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग में जा रहा है। तो सब में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो KKLL को मैं इग्नोर कर देता हूँ, KKLL को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, बट वो है, एग्जिस्ट करता है। वो सब में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो KKLL का तो कुछ होना नहीं है, उसको हटा दो साइड में। अब हम आगे की बात कर लेते हैं। आगे की बात कैसे करेंगे? तो सर ये देखो C2 है आपका, C2 में टोटल 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 तो आपने ऑलरेडी साइड कर दिया है, तो बच्चे कितने? 4। और आगे क्या बचा है सर? तो इधर तो आगे पाई आता है, पहले पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py एंड देन पाई 2pz। अब सर 4 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले आप इसमें एक डालिए, फिर दूसरा इसमें, फिर तीसरा इसमें, फिर चौथा इसमें, चारों इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। अब अगर अनायन ये बनाएगा तो सर इसमें एक और इलेक्ट्रॉन आएगा जो कि इसमें जाएगा। क्या इसमें जाएगा? पाई सॉरी सिग्मा होगा, सॉरी सॉरी सिग्मा होगा, एक सिग्मा होगा, 2 पाई होंगे। आप बोलोगे सर आपने सिग्मा 2pz क्यों कर दिया? अभी तक तो सिग्मा 2px कर रहे थे। तो जो लोग समझदार हैं वो इस बात को समझ चुके होंगे कि मैं x लिखूं, y लिखूं, z लिखूं, उससे फर्क नहीं पड़ता, यहां जो लिखा है वो इधर नहीं आना चाहिए। मतलब जिसने सिग्मा बनाया वो पाई नहीं बनाएगा उसी एट द सेम मोमेंट, बट इन अ डिफरेंट कंपाउंड इट मे बी द केस। खैर, तो इसका यहीं से खत्म हो गया। इसका अगला इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जाने वाला है, दैट इज हमें समझ में आ गई ये बात। अब हम लोग देखते हैं O2 का। O2 का लिखोगे तो O2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? टोटल 16। 8 इलेक्ट्रॉन KKLL में गए, तो कितने बचे? 8। 8 इलेक्ट्रॉन को फिल करना हमें, तो O2 वाले में हमें पता है कि सिग्मा पहले आ जाता है, तो सिग्मा 2px में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो, बचे 6। पाई 2py इज इक्वल टू पाई 2pz। कितने? 2 2। कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 2। पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py 1 1। तो इसमें अगर एक और नेगेटिव चार्ज देते हो तो कहां जाएगा इलेक्ट्रॉन? यहां पे एंटी बॉन्ड। एंटी बॉन्डिंग में। तो ये तो स्टेबल नहीं होगा आयन बना के। अब बात करते हैं NO की। तो NO में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे सर? 8 प्लस 7 15। तो ये 16 वाले में यहां तक 16 लिखा है हमने, तो 15 तो यहीं खत्म हो जाएगा ना। बोलो, ड्रॉ करने की जरूरत है क्या मुझे इसकी अलग से स्ट्रक्चर? इसका मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत है क्या NO की? NO यहाँ NO में ये नहीं होगा बस, और क्या होगा? यहां तक तो रहेगा ही। बोलो, आया ना? यस सर। कोई है जिसको नहीं समझ में आ रहा है? यार बोल दो भाई, बोल दो प्लीज। मैं बोल रहा हूं कि जिसमें 16 इलेक्ट्रॉन है उसका ये कॉन्फ़िगरेशन है, तो जिसमें 15 होगा उसमें ये नहीं होगा, और क्या होगा? यही होगा ना। अब उसका इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा भाई? नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ये 2 है, तो इसका सर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा N2 का, तो इसका नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन भी एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, इसका नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन भी एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। F2 का देख लेते हैं। F2 का क्या होगा? कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? 18। 18। तो 18 है, तो 2 यहां भी हो जाएंगे और 2 यहां भी हो जाएंगे बाय डिफॉल्ट पहले तो। अब अगला आएगा सिग्मा 2p। 18 शायद कवर हो गया, राइट? सिग्मा स्टार 2p, क्या बच गया? Z। तो अगला इलेक्ट्रॉन इसका इसमें आने वाला। तो इन तीनों के इलेक्ट्रॉन, जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे, जिससे उसकी स्टेबिलिटी पहले वाले से कम हो जाएगी, ना कि बढ़ेगी। जबकि C2 में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होगा नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन वो कहां जाएगा? बॉन्डिंग में जाएगा, जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्लियर है सबको? बताइए। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। तो अब आपको समझ में आया कि C2 की बॉन्ड ऑर्डर क्यों ज्यादा, सॉरी C2 की स्टेबिलिटी क्यों बढ़ेगी अनायन बनाने से, और बाकियों की क्यों घटेगी अनायन बनाने से। खैर, और भी एप्लीकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, अमंग द फॉलोइंग स्पीसीज द डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल इज। आपको इसमें से डायमैग्नेटिक ढूंढना है। डायमैग्नेटिक ढूंढना है इसमें से। पहला ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है B2, तीसरा ऑप्शन है NO, एंड फोर्थ ऑप्शन है O2। आपको बताना कि इनमें से डायमैग्नेटिक कौन कौन से हैं या कौन है।
सर एक डाउट है कि बोलो। जैसे आपने O2 से F2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग होती है, तो जैसे CO है और NO है, इसको किसकी कंसिडरेशन में लेंगे? देखो CO और NO को हम लोग लेंगे उन्हीं के कॉन्फ़िगरेशन में, O2 वाले कॉन्फ़िगरेशन में। CO को N2 वाले में ले लो, देखो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मैं बताऊं आपको तो, ठीक है। बट आपको उसको O2 वाले कॉन्फ़िगरेशन में ही लेना है, मतलब ऑक्सीजन वाले में ही लेना CO और NO को, ठीक है। किस बहुत सारी बुक में अलग अलग टाइप का दिया रहता है इसका, किसी बुक में इसमें CO का उसके इसके अकॉर्डिंग दिया रहेगा, कार्बन के अकॉर्डिंग, किसी में ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग। तो थोड़ा सा वो भी कंफ्यूजिंग पार्ट है, बट आप ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग लो, फर्क नहीं पड़ेगा वैसे अपनी कैलकुलेशंस में। आ गया? जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन है उसको उसको अब दिमाग में उसकी एक पिक्चर बना लो तुम। पिक्चर एज इन कि हवा में तुम इलेक्ट्रॉन फिल कर दो, तुम्हें पेन से लिखने की जरूरत ना पड़े। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसका हम लोग टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो होगा 14। 14 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि 8 तो पहले सारे डायमैग्नेटिक हो गए, क्योंकि उधर 8 के एल एल वाले में सब में दो दो इलेक्ट्रॉन आ गए। कोई अनपेयर्ड है क्या? नहीं है, बचे 6। सर 6 में आप सिग्मा को पहले कर लो या चाहे पाई को पहले कर लो, रहेंगे तो 3 ऑर्बिटल ना बॉन्डिंग के। बोलो, ध्यान दो यहाँ पे यार, ये देखो, ये देखो कहाँ गया वो, ये सीक्वेंस देखो, ये 6 तो इसमें तो 6 ही इलेक्ट्रॉन जाएगा ना, चाहे ये पहले आ जाए चाहे ये पहले आ जाए, रहेंगे तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में ही। बोलो हाँ या ना? तो 6 इलेक्ट्रॉन को 3 ऑर्बिटल में फिल करना है तो यार सारे पेयर्ड ही होंगे ना। बोलो, नहीं समझ में आता तुम लोगों को, शॉर्ट ट्रिक समझ में ही नहीं आती तुम लोगों को, डायरेक्ट में कुछ बात कर दूं तो तुम हवा में उड़ खो जाते हो तुम। लिखो, तुम कॉन्फ़िगरेशन ही लिखो। मैं ये बोल रहा हूं, वापस सुनो, कि के एल एल, क्या यहां से कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में चेंज आएगा? टोटल इलेक्ट्रॉन है इसमें 14, नहीं वो आएगा। सर 6 बचे तो आप सिग्मा को पहले लिख लो या पाई को पहले लिखो। 6 के 6 बॉन्डिंग ऑर्बिटल हमारे पास अवेलेबल है, और अगर 5 होते तो हमें सोचना पड़ता कि सर किधर अनपेयर डालेंगे। 6 है तो हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है, हमें पता है कि ये डायमैग्नेटिक है। अगर किसी को डाउट है तो बता दो मुझे। जिसको डाउट है वो कॉन्फ़िगरेशन लिख ले, इसके बाद सिग्मा 2p(x2) पाई 2p(y2) एंड पाई 2p(z2), इन दोनों की एनर्जी इक्वल होगी। अब इसमें कहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? दिख रहा है क्या आपको? वो नहीं, सर नहीं दिख रहा है। अब बात करते हैं B2 की। तो सर B2 में पाई वाला ना पहले आ जाता है, पाई वाला पहले आ जाता है, और B2 में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? बोरॉन में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? 10, क्योंकि सर 5 होता है, 5 5 × 2 10। सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ बताओ? तो सर 10 इलेक्ट्रॉन में 8 तो ये ऐसा ही रहना है, 2 इलेक्ट्रॉन और है, और इनका हमें पता है कि सिग्मा बाद में आता है, पाई पहले आता है। तो पाई पहले आता है तो पाई 2p(x) इज इक्वल टू पाई 2p(z), के एल एल। तो 8 इलेक्ट्रॉन यहां हो गए, 2 यहां फिल करने, तो 1 by 1 फिल करेंगे तो n इज इक्वल टू 2। n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ ये क्या है? पैरामैग्नेटिक है। अब O2 की बात कर लेते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि O2 जो है वो डायमैग्नेटिक है, लेकिन ऐसा ट्रू नहीं है। क्यों ट्रू नहीं है? लेट्स फाइंड आउट। क्योंकि यहीं से तो कहानी शुरू हुई थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की, मतलब यहीं से नहीं शुरू हुई थी, बट बहुत सारे ऐसे आंसर्स मिले थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से जिस जो वीबीटी के अकॉर्डिंग कुछ और थे। वीबीटी के अकॉर्डिंग जब पढ़ा जा रहा था तो पता चल रहा था कि ऑक्सीजन जो है वो क्या है? डायमैग्नेटिक है, लेकिन एक्चुअली में ऑक्सीजन क्या होता है? पैरामैग्नेटिक। कैसे? देखो, के एल एल, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 और बचे, सिग्मा 2p(x2) पाई 2p(y2) एंड पाई 2p(z2). यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आता है पाई स्टार 2p(x) इज इक्वल टू पाई स्टार, इसको नीचे लिख लेता हूं, पाई स्टार 2p(x) इज इक्वल टू पाई स्टार 2p(y). अब देखो हमने पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, कौन बताएगा? बताओ परमिंदर, कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं इसमें फिल करने को? कितने बच गए हैं? हम्म,
चलो निदिता आप बताओ कितने इलेक्ट्रॉन बच गए फिल करने को इसमें? सही है मनकिरण। यस निदिता। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं क्योंकि हमने सर 8 तो यहां फिल कर लिए हैं, 6 यहां फिल कर लिए हमने। ठीक है, कितने हो गए 14, बचे 16 टोटल थे, तो 1 इसमें 1 इसमें। आप देख सकते हैं कि इसमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 हो गए। वैसे ही NO का जाओगे तो NO इससे एक ही इलेक्ट्रॉन कम होता है, इसमें 16 तो इसमें 15, तो 15 में क्या हो जाएगा, एक यहां से कम हो जाएगा, तो NO वाले में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हो जाएगी 1। तो बाकी सारे पैरामैग्नेटिक है एक्सेप्ट CO विच इज अ डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपको जो मिलेंगे। मैं थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूं कि जो आपको घर से करके लाना है। यहां मैं नीचे जितने भी मॉलिक्यूल लिख रहा हूं उनका आपको निकालना है बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, आपको निकालना है N विच इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मतलब मैग्नेटिक बिहेवियर निकालना आपको कुल मिला के। मैग्नेटिक नेचर क्या होगा इनका ये आपको पता करना, पैरामैग्नेटिक होगा डायमैग्नेटिक, दो ही चीजें हो सकती है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या निकाल सकते हो इसमें, बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक नेचर, बस ये 2 चीजें निकाल लेना, बाकी एग्जिस्टेंस वगैरह तो पता चली जाएगा। चलो H2 H2 प्लस H2 माइनस He2 प्लस O2 2 माइनस O2 माइनस O2 CO2 माइनस N2 2 माइनस, फिर आप निकाल लेना HF F2 माइनस F2 B2 2 माइनस B2 माइनस C2 माइनस। मतलब ऐसे यार बहुत सारे बना सकते हो तुम बैठ के, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा बढ़ा के कर सकते हो, एक इलेक्ट्रॉन के साथ भी कर सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, ऐसे करते करते आपको बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक बिहेवियर बताना है। ये सब चीजें अगर आप कर लेते हो इन सब मॉलिक्यूल्स के लिए, तो आप और भी बहुत सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हो। ये आप करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, सब लोग। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप जब क्वेश्चन करना तब आप लिख लेना। ठीक है, क्योंकि मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्विकली हम लोग देख लेंगे, जो कि एडवांस में 1-2 बार पूछा जा चुका है। कुछ नहीं, इसी को लोग इंटरलिंक कर देते हैं कंफ्यूज करने के लिए। कंफ्यूज कैसे करते हैं देखते हैं हम लोग। आपसे अगर मैं पूछता हूं कि आइडेंटिफाई पैरामैग्नेटिक ऑक्साइड्स, पहला है K2O2, दूसरा है K2O, तीसरा है KO2 और चौथा है, तीनों में से आइडेंटिफाई और कौन कौन से पैरामैग्नेटिक है इनमें से बताइए आप। इनमें से कौन कौन से जो ऑक्साइड हैं वो पैरामैग्नेटिक हैं, ये आपको बताना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आपको मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप बस मुझे ये बता दो कि क्या सोचते हो आप, क्या लगता है आपको कैसे करेंगे। सॉल्व मत करो आप, मुझे मुझे बस बता दो कि सर इसमें ये कर देंगे तो ऐसा ऐसा करके ऐसा ऐसा आ जाएगा। कोई बता सकता है? चलो O2 वाली कॉन्फ़िगरेशन में सारे की कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। पर मान्यता हमें तो 3 इतने बड़े मॉलिक्यूल्स का कॉन्फ़िगरेशन तो हम लिखते ही नहीं है।
K2O2 कितना बड़ा हो जाएगा? अपना एटॉमिक नंबर 20 से ज्यादा का तो अपन ने किया ही नहीं है। K2O2 तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, यस तो कैसे करेंगे? सर ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज के साथ चेक कर सकते हैं। ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज के साथ चेक कर सकते हैं, कैसे? समझा नहीं मैं, मतलब थोड़ा सर थोड़ा। जैसे K2O2 में उसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है और K2O में उसके ऊपर -1 नेगेटिव चार्ज है हम्म। और K2O2 में O2 1 नेगेटिव है, तो उन तीनों की चेक करके शायद निकल आए। और पोटेशियम का क्या करें? ठीक बोल रहे हो, बट पोटेशियम का कैसे करेंगे फिर? पोटेशियम को कैसे जस्टिफाई करेंगे कि वो उसका कुछ रोल नहीं है इसमें? सही बोल रहे हो आप, गलत नहीं बोल रहे हो, बस मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एडिशनली कैसे सोचेंगे इसके बारे में। पोटेशियम में तो 19 एटॉमिक नंबर होता है, तो उसका कैसे करेंगे? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। तो ऐसा थोड़ी होगा कि मॉलिक्यूल में एक पार्ट देख लिया तो हो गया, दूसरे पार्ट को देखना ही नहीं है? ऐसा हो सकता है क्या? ठीक है, चलो सही बोल रहे हो आप। देखो आप लोगों को क्या करना है, पैरामैग्नेटिक या बहुत बार ऐसा पूछा सकता है इसमें से डायमैग्नेटिक कौन है, तो वो ज्यादा कंफ्यूजन होगा जाएगा। क्यों? क्योंकि पैरामैग्नेटिक में तो फिर भी चलो आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ढूंढने होते हैं, डायमैग्नेटिक में देखना होता है कि पेयर्ड है कि नहीं। तो जैसे देखो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, कोई भी ऐसा कंपाउंड दिया होगा ना, अगर आपसे पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक बिहेवियर पूछा जा रहा है तो दो ही तरीके हो सकते हैं। या तो आपको सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट से निकालना है, मतलब जो मेटल है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि उसके चार्ज से निकालना है, या फिर आपको एमओटी लगा के निकालना है। और भी तरीके सीखेंगे हम लोग आगे जब केमिस्ट्री धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, अभी तो बहुत स्टार्ट ही है, हम लोग बिगिनिंग फेज में है। लेकिन अगर ऐसा कहीं कंपाउंड मिल जाता है तो उसमें क्या करना, आप इसको कटायन अनायन में ब्रेक कर लो। आपको पता है कि जो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है ना, दो पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट पे प्लस चार्ज ही आता है, आप कुछ भी कर लो उससे प्लस चार्ज ही आएगा, +1, क्योंकि वो फर्स्ट ग्रुप का है, इसीलिए उसको फर्स्ट ग्रुप में डाला भी गया कि वो एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो उसमें हमेशा +1 ही चार्ज आएगा। उसके अकॉर्डिंग दूसरे काउंटर पार्ट पे चार्ज हम लोग एडजस्ट करेंगे। मतलब सर इसमें O2 2- है, इस पे O2 पे 2- है, और इसमें O2 पे 1- है। क्या समझे? इसमें O2 पे 2- है, इसमें ऑक्सीजन पे 2- है, और इसमें O2 पे -1 है। ये है इसके अनायन। ऐसे मैं सेग्रीगेट कर देता हूँ कटायन अनायन। किसी को इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है तो बताओ? नहीं है। अब आप मुझे बताओ कि पोटेशियम प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखेंगे तो उसके आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन में 2p6 नहीं आएगा? आएगा क्या? सॉरी 3p6। सही बात बोल रहा हूं क्या मैं? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया ना यार। पोटेशियम प्लस का मतलब क्या हुआ कि उससे प्रीवियस वाले नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इसने गेन कर लिया, अटेन कर लिया, तो क्या इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा? बोलो। तो नहीं होगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? पहले तो ये बताओ मुझे। मैंने क्या किया, जो भी सॉल्ट है हमेशा यही ध्यान रखना, अगर सॉल्ट है तो उसको कटायन अनायन में पहले तो ब्रेक कर लो। कटायन अनायन में मैंने ब्रेक कर लिया इसको। अब कटायन अनायन में ब्रेक करने के बाद मैं देखूंगा कि क्या कटायन पैरामैग्नेटिक है, अगर है तो कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है, क्या अनायन पैरामैग्नेटिक है, अगर है तो कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है, अगर दोनों पैरामैग्नेटिक नहीं है तो कंपाउंड भी पैरामैग्नेटिक नहीं है। सिंपल सी बात है, दोनों पार्ट को देखना पड़ेगा हमें। तो कटायन का हमें पता है, आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लो यार, लिख के देख लो। इसमें 18 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो 18 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है आपको भी पता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है तो उसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है क्या नोबल गैस में? नहीं होता। फ्लोरीन में होता है, उसके बाद वाले में नहीं होता। क्लोरीन में होता है, उसके बाद वाले में नहीं होता। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में अनपेयर्ड नहीं है, मतलब इस साइड से तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 ही है सब में। N0 N0 N यहाँ पे मैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ N0। कटायन की साइड से कोई पैरामैग्नेटिज्म नहीं आ रहा है, तो अगर आएगा तो किसकी साइड से आएगा? अनायन का साइड से। आप बताओ अब ऑक्सीजन 2- का मतलब क्या है? कितने इलेक्ट्रॉन? 10। 10 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कोई पैरामैग्नेटिज्म आ सकता है क्या? क्योंकि वो एटम है, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखेंगे इसको। ये अनायन है, एटॉमिक अनायन है, मॉलिक्यूलर अनायन नहीं है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे जैसे एटम का लिखते हैं। तो ये किसका है? आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन है, किसका है? नियॉन का है। नियॉन का।
उसमें क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या? नो सर। तो इसके पास भी, इसका भी N0 हो गया, तो मतलब ये तो पैरामैग्नेटिक नहीं है, ये हमें पता चल गया कि ये वाला जो है वो तो नहीं है K2। अब हम देखते हैं K2O2 और KO2 में। अब K2O2 की बात कर लेते हैं चलो पहले। तो इसमें O2 पे 2 माइनस है। O2 पे 2 माइनस का मतलब क्या है? 18 इलेक्ट्रॉन्स, यही होगा। यस सर। अब 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो चलो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। KKLL, क्यों KKLL सर? क्योंकि अब ये मॉलिक्यूल है ना कि वो एटम है। तो KKLL लिख लिया, 8 बचे 10, 10 में सिग्मा 2p z पाई 2px पाई 2py। बोलना कि सर ये क्या करते रहते हो आप, हर बार कभी z लिख देते हो कभी x लिख देते हो। मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, आप भी कुछ भी लिख सकते हो, बस ये ध्यान रखना है कि जिसने सिग्मा बना लिया वो पाई नहीं बना सकता। तो अगर आपने यहाँ पे y यूज किया सिग्मा 2py, तो आप यहाँ सिग्मा 2pz और यहाँ पे सिग्मा 2px यूज करेंगे, मतलब पाई। ठीक है, हो गया, 6 कवर हो गए। अभी भी कितने बचे हुए हैं? 4। तो हम लिखेंगे पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। दोनों की एनर्जी बराबर होती है, 2 इसमें 2 इसमें 4। अब बताओ इसमें कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या? नो सर। नो सर। तो यहां से हम सोच सकते हैं कि या तो सर यही होगा, अगर नहीं भी होगा तो लेट्स कंफर्म इट कि ये है कि नहीं। तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 17 होंगे कि नहीं? 17 इलेक्ट्रॉन का मतलब सर यहां से यहां तक तो सेम ही होना है, बस यहाँ पे 3 4 की जगह 3 कर देना है। तो लास्ट का मैं लिख देता हूँ सिर्फ पाई स्टार 2px2 इज इक्वल टू पाई स्टार 2py1। बाकी यहां से यहां तक सेम रहेगा, ये जो पार्ट है ये कॉमन रहेगा इसके लिए भी। किसके लिए? O2 माइनस के लिए। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या? बोलोगे बिल्कुल है सर। कितना? 1। तो क्या हो गया, ये पैरामैग्नेटिक हुआ क्या? तो जनरली फर्स्ट ग्रुप या सेकंड ग्रुप का अगर कटायन होगा तो उसकी वजह से पैरामैग्नेटिज्म नहीं आएगा, क्योंकि वो कटायन पे +1 या +2 ही चार्ज होता है, और वो हमेशा इसी तरह से होता है कि उसका कॉन्फ़िगरेशन नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से मैच कर जाए। हाँ, कटायन में कंफ्यूजन तब होना चाहिए जब वो डी ब्लॉक का है। डी ब्लॉक का कोई मेटल है तो जनरली उसका जरूरी नहीं कि उस पर पॉजिटिव चार्ज आने के बाद वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन करे, मतलब जरूरी नहीं कि उसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो जाएं। तो वो आपसे अभी भी नहीं भी पूछा भी नहीं जाएगा। अभी आपसे वही पूछे जाएंगे जो आप कर सकते हो, वो जब हम पढ़ेंगे तब पूछा जाएगा। तो पॉइंट इज, आपको कटायन को भूल ही जाना एक तरह से। अनायनिक पार्ट जो है उस पर फोकस करो, ऑक्साइड होगा मोस्टली, तो उस ऑक्साइड पे फोकस करके उसको फाइंड आउट करके निकाल लो कि वो पैरामैग्नेटिक है कि नहीं, और कैसे निकालते हैं उसका तरीका मैंने आपको सिखाई दिया है। तो आप अब एमओटी के दुनिया में कहीं भी क्वेश्चन मिल जाए आप उठा के करो, आप आराम से करोगे। आप लोग जब भी कोई डाउट हो तो आप उसको पूछ लेना, एमओटी के क्वेश्चन कर लेना, प्रीवियस से जेई एडवांस, जेई मेंस, नीट, ओलंपियाड, जहां से भी क्वेश्चन उठा करना है आप कर लो आराम से। यही कॉन्सेप्ट होता है, इतना ही होता है एमओटी में, कुछ होता भी नहीं इससे ज्यादा। इसके अलावा अगर किसी को कोई कंफ्यूजन डाउट है तो बताओ। सर जो 8 से नीचे कॉन्फ़िगरेशन होती है तो ऑड नंबर जो होते हैं उनका पैरामैग्नेटिक होता हाँ, है। फिर आपको प्रॉपर लिखना है वैसे। हाँ हाँ हाँ, ये भी सही बोल रहे हो आप कि सर 8 से नीचे वाले में जितने भी ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन होंगे वो पैरामैग्नेटिक ही होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। सिर्फ 8 से बाद वाले में कंफ्यूजन शुरू होता है, और वो भी कंफ्यूजन नहीं होगा अगर आप बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन आप लिख लोगे ना, जब प्रैक्टिस करने के लिए जो मैंने दिया उनको लिख लोगे तो खुद ही तुम एक ट्रिक डेवलप कर लोगे कि अच्छा ऐसा करना है क्या। ठीक है, तो वो सब आप खुद ही कर लोगे अपने हिसाब से। द पॉइंट इज, बहुत आसान है ये और बहुत कॉमन है ये, बहुत ज्यादा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। 2019 अलोन में हर पेपर में क्वेश्चन था एमओटी से, 1-2 पेपर को छोड़ के। अगर मान लो 10 पेपर होते हैं, 8 पेपर होते हैं जेई मेंस के, तो उसमें से 8 में से 6 पेपर में एमओटी से क्वेश्चन आया हुआ था। इतना कॉमन है। ठीक है, तो प्लीज आप इसको अच्छे से करें। और इससे रिलेटेड ऐसा नहीं कि सिर्फ एमओटी से डायरेक्ट क्वेश्चन ही आते हैं, इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिससे क्वेश्चंस आते हैं, इसको रिलेट करके, को रिलेट करके, तो इसलिए उसके लिए भी बेनिफिशियल है ये। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। कल की क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे वीक फोर्सेस। वीक फोर्सेस मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ऐसा वो कंप्लीट हो जाएगा तो अपनी केमिकल बॉन्डिंग हो जाएगी कंप्लीट, फिर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू।